Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the spotlight will be on another killing of African American by police in Atlanta sparks protests. Police reforms are quickly taking hold across the country. Book reveals tussle between Melania and Ivanka Trump. Bollywood actor Sushant Singh Rajput commits suicide. Trump postpones rally. Financial updates and much more. Let's begin with news in brief. There are more than 7.9 million cases of coronavirus infection in the world, with more than 434,000 deaths. As many as 3.6 million people have recovered so far. In the US, there are 2.1 million cases, including 115,000 deaths. There are 152,000 cases in California, including 5,082 deaths. Confirmed cases surpass 17,200 in the Bay Area, including 498 deaths. There has been a declined confirmed hospitalizations in the 9 Bay Area counties. Rising numbers of infection in many states are prompting stern warnings from public health officials in the US. South Carolina and Alabama have both hit single-day records of new confirmed coronavirus cases, while Texas and its largest city, Houston, are experiencing record number of hospitalizations. New York Governor Andrew Cuomo has threatened to roll back the reopening of Manhattan and the Hamptons amid widespread complaints that people are ignoring social distancing requirements. Meanwhile, in Nashville, officials have cited a number of businesses for violating public health rules. Another huge stimulus bill could be around the corner. The White House is reportedly targeting a Phase 4 stimulus package to the tune of at least $2 trillion, according to the White House trade advisor Peter Navarro. The package would likely focus on American manufacturing. In India, there have been 332,000 cases confirmed, 9,520 people have died, and 170,000 people have recovered from the virus. Indian officials have stated that the country recorded 11,500 new cases of coronavirus over the last 24 hours, taking the country's overall total to more than 32,000. As cases continue to rise in the capital, plans are afoot to carry out 18,000 tests per day. China has reported highest daily case total in 2 months after Beijing's biggest wholesale food market was shut down following a resurgence in local infections. The spike has led Beijing to stop relaxing some social restrictions and halt the restarting of some schools. Europe is taking a big step toward a new normality as many countries open borders to fellow Europeans after 3 months of coronavirus lockdowns. But tourists from the US, Asia, Latin America and the Middle East will have to wait. Europe is expected to start opening up to some foreign visitors next month. अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी वो थमे नहीं है और पूरी दुनिया की अटेंशन जो है इस वक्त अमेरिका पर लगी हुई है। और ऐसे में एक और मामले में नस्लवाद के मुद्दे को और हवा दे दी गई। ये मामला हुआ अटलांटा में, जहां पर एक अफ्रीकन अमेरिकन 27 साल के अफ्रीकन अमेरिकन रेशार्ड ब्रुक्स पर पुलिस ने गोली चलाई और उनको मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं देखिए, पुलिस वाले आजकल प्रोटेस्ट में देख रहे हैं किस तरह की ब्रुटैलिटीज चल रही हैं। अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उन पर फोर्स यूज किया जा रहा है। और आज के माहौल में जबकि इतनी ज्यादा गहमा गहमी चल रही है और इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है कि पुलिस को अपने तरीके बदलने चाहिए, तौर तरीके बदलने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ऐसे में वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है और ज्यादा इस तरफ तवज्जो दी जा रही है कि अब तो उनको अपना सिस्टम फिक्स कर देना चाहिए। अब अटलांटा में फ्राइडे को क्या हुआ कि 27 साल के रेशार्ड ब्रुक्स को मारा पुलिस वालों ने। 2 पुलिस वाले थे और वहां पर उसके बाद फिर काफी प्रोटेस्ट हुए। एक इंटरस्टेट हाईवे को
जाम कर दिया गया और जिस जगह ये हुई घटना वेंडीज रेस्टोरेंट में, उसको जलाकर राख कर दिया गया। तो फ्राइडे शाम को वेंडीज रेस्टोरेंट के बाद ड्राइव थ्रू में रेशार्ड ब्रुक्स जो हैं वो थे और उनकी आंख लग गई, वो सो गए। और रेस्टोरेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उनका टेस्ट किया गया तो नशे के टेस्ट में वो फेल हो गए। पुलिस ने उनको कस्टडी में लेने की कोशिश की और फिर रेशार्ड ब्रुक्स और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। 2 वाइट पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कुछ उनको कार से बाहर निकाला, गिरफ्तार करने की कोशिश की, हाथापाई हुई, कुछ संघर्ष हुआ। पुलिस ऑफिसर्स ने जो है अपनी टेजर गन इनकी तरफ पॉइंट की और रेशार्ड ब्रुक्स ने वो गन छीन ली और भागने लगे। उसके बाद पुलिस वालों ने उनकी पीठ पर गोलियां चला दी और उनकी मौत हो गई। रेशार्ड ब्रुक के रिश्तेदारों का कहना है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो कोऑपरेट कर रहे थे। कार खड़ी हुई थी, उसके बावजूद पुलिस ने उनको जोर जबरदस्ती से बाहर निकाला, हाथापाई की और उन्होंने कहा है कि इस घटना में शामिल जो भी अधिकारी हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अब जिस ऑफिसर ने वो फेटल शॉट शूट किए थे उनको फायर कर दिया गया था और दूसरे ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पर भेज दिया गया है। अटलांटा की पुलिस चीफ एरिका शीर ने रेजिग्नेशन दे दिया 1 डे आफ्टर द शूटिंग। वहां पर प्रोटेस्ट जो हैं वो काफी भड़क गए हैं और सारे देश में अब एक नई वेव आ गई है। और आज रेशार्ड ब्रुक्स की फैमिली ने अपील की है कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल होने चाहिए। रेशार्ड ब्रुक्स 27 साल के थे, उनके 4 बच्चे हैं। आज उनकी बीवी और उनके रिश्तेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख जाहिर किया, कहा कि जस्टिस मिलना चाहिए। अब देखिए, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ऐसे में काफी जगह पर ये होड़ लगी हुई है कि किस तरह से हम रिफॉर्म्स जल्द से जल्द जो हैं वो शुरुआत कर दी जाए। अब न्यूयॉर्क में एक लॉ है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के रिकॉर्ड जो है उनको सीक्रेट रखा जाता है, तो वहां पर ये रिफॉर्म हो रहा है कि सीक्रेट नहीं रखा जाएगा, उनकी जो अब्यूज हिस्ट्री है पुलिस वालों की उसको पब्लिक कर दिया जाए। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक चोक होल्ड्स, नेक रिस्ट्रेंट्स जो हैं उनको बैन करने की बात हो रही है और कई जगह ये काम हो चुका है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो नेक रिस्ट्रेन, उनका चोक होल्ड की वजह से डेथ हुई थी। तो इस वजह से ये काफी सादा प्रपोजल्स हो रही हैं कि एक तो स्लैश कर दिया जाए पुलिस डिपार्टमेंट की फंडिंग को और रेशियल इंजस्टिस और वायलेंस के खिलाफ कुछ करना चाहिए। अब तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वी कैन नॉट वेस्ट अनदर मोमेंट। अब इतनी रेसिज्म और लैक ऑफ पुलिट अकाउंटेबिलिटी अमेरिका में है तो हमें तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अगर हम कुछ फर्क करेंगे तभी तो कुछ फर्क होगा, नहीं तो सिस्टम जिस तरह से चलता आ रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। और जो छोटी मोटी चीजें जो इजीली हो सकती हैं कि चलो चोक होल्ड बैन कर दिया, ये सब चीजें जो हैं वो इजीली होने वाली हैं, वो काम तो हो रहे हैं, मगर जरूरत क्या है कि प्रॉब्लम बहुत डीप है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए और बहुत सीरियसली सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि कई जगह तो स्टेट और लोकल लेवल पर जो है वो रिफॉर्म वर्क शुरू हो गए हैं, मगर जब तक फेडरल एनफोर्समेंट नहीं होती, कोई फेडरल लीडरशिप इस बारे में नहीं कुछ स्टैंडर्डाइज करती पुलिसिंग की पॉलिसीज को, तब तक इतनी चेंजेस लाना शायद मुश्किल हो जाएगा। अब 18,000 यूएस में पुलिस एजेंसीज हैं, 18,000 पुलिस डिपार्टमेंट है, 18,000 वेज हैं ऑफ डूइंग बिजनेस, 18,000 पॉलिसीज हैं। कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है कि किस तरह की पॉलिसी, लॉ, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई यूनिवर्सल स्टैंडिंग नहीं है कि मिसकंडक्ट या अब्यूज हो तो किस तरह से प्रॉब्लम को डील करना है। तो पुलिस वाले जो हैं उनको कितनी ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं, उनकी यूनियन उनको शील्ड करती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं पाता कि पुलिस वालों को पनिशमेंट मिल सके। और नेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हर पुलिस डिपार्टमेंट सिमिलर वे में रिपोर्ट करे कब पुलिस वाले फोर्स यूज कर रहे हैं, कब वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, किस तरह वो लोगों को रोक रहे हैं, किस तरह से सर्च कर रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो कि किए जाने चाहिए। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुलिस फोर्स में देयर आर अ फ्यू बैड एप्पल्स। उन्होंने कहा बहुत सारे जो डिसेंट अमेरिकन हैं सारे ही रेसिस्ट बिगॉट्स नहीं है, थोड़े से लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस फोर्स बदनाम होती है। उन्होंने पुलिस वालों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, रिलीजियस लीडर्स, लॉ एनफोर्समेंट के साथ की और उन्होंने कहा कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पेश करेंगे। मगर ये सारी चीजें जो वॉशिंगटन से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे नेशनल पॉलिसी को लाने के, तो वो सारा का सारा जो भार है वो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कंधे पर छोड़ दिया गया है। इसीलिए जो लोग हैं बहुत ज्यादा नाराज हैं
कि चेंज लाई जानी चाहिए, क्योंकि सारी कंट्रीज में पहुंच गई है ये प्रोटेस्ट की खबर। सब कंट्रीज में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में तो छोटी बड़ी सब सिटीज में इस तरह की बहुत डिमांड हो रही है। अब डेमोक्रेट्स ने एक बिल प्रेजेंट किया है। उनके बिल में बहुत सारे ठोस कदम हैं कि किस तरह से बैन की जाएंगी चीजें, किस तरह से सुधार किया जाएगा पुलिस की फंक्शनिंग पर। तो 20 सिटीज जो हैं यूएस की, उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया है चोक होल्ड, जैसे फिलाडेल्फिया, फिनिक्स, लॉस एंजलिस, सैक्रामेंटो, सैन डिएगो, मियामी, शिकागो, वॉशिंगटन डीसी, मिनेपोलिस, न्यूयॉर्क सिटी, डेनवर, ह्यूस्टन। और ये जो शुरू हो गई है बैन होने की, और डेमोक्रेटिक्स ने जो बिल रखा है उसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कही है कि मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसफर किस कंडीशंस में होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है क्वालिफाइड इम्यूनिटी का, क्योंकि पुलिस वालों को इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके लिए टफ लॉज होने चाहिए। अब डेरिक शवान, जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर अपना नी रखा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, जो चार्ज है इस मामले में, उनके ऊपर 18 इंटरनल अफेयर की कंप्लेंट्स थी और उनको 2 पर रिप्रिमांड मिला था। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था, वो खुलेआम घूम रहे थे। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं मगर कुछ किया नहीं जा रहा। बात हो रही है कि पुलिस को डिफंड किया जाए, मगर डिफंड कर अगर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बेनिफिट करेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को हटा दे तो सेफ्टी का क्या होगा? जो लो इनकम सोसाइटी है, लो इनकम कम्युनिटीज हैं, वो ज्यादा सफर करेंगी, क्योंकि हायर इनकम वाली कम्युनिटीज तो कई अपने प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स हायर कर लेती हैं, मगर लो इनकम कम्युनिटीज में सेफ्टी का थ्रेट ज्यादा हो जाएगा। और ये एक नी जर्क रिएक्शन है कि डिसमिस कर दें, डिसबैंड कर दें। अब कई जगह पर बताया जा रहा है कि जो एलोकेटेड अमाउंट है वो कौन सी और एजेंसीज में शिफ्ट किया जाएगा, जैसे मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, होमलेसनेस, एजुकेशनल सर्विसेज। सैन फ्रांसिस्को के मेयर लंदन ब्रीड ने जैसे कहा है कि सिटी ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे डिस्प्यूट हो गए, कोई और होमलेसनेस की प्रॉब्लम है, स्कूल की डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, जहां पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पर और लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इनकी जगह ले लें, ताकि वायलेंस और पुलिस क्राइम की इंसिडेंट्स जो हैं वो कम होती जाएं। तो देश भर में इस बात पर जागरूकता आ रही है, मगर ठोस कदम अभी बाकी हैं। इवांका ट्रंप ने ट्राई किया कि फर्स्ट लेडी का ऑफिस है उसको रीनेम कर फर्स्ट फैमिली ऑफिस कर दिया जाए, और इवांका ट्रंप और मेलानिया ट्रंप में पावर स्ट्रगल हुई। ये बात आ रही है एक बुक में। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। ये एक बायोग्राफी है जो वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर मैरी जॉर्डन ने लिखी है। तो इसमें बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज की गई हैं। 286 पेज की बुक है जो जून 16 कल रिलीज होने वाली है। और इसके जो पोर्शंस हैं वो पब्लिश हुए हैं कुछ पब्लिकेशंस में, ट्विटर में शेयर हुए हैं। तो कुछ घटनाएं जो हैं वो उभर कर आ रही हैं इस बुक से, कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का किस तरह का रोल है, किस तरह की उनकी फैमिली में जो है वो पावर स्ट्रगल चल रही है। इस बुक के मुताबिक फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जो है वो अनबिलीवेबली इन्फ्लुएंशियल है व्हाइट हाउस में। हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं बोलती और साइलेंट रहती हैं इशू पर। तो उसमें बताया गया है कि वो प्लानर हैं, असर्टिव हैं, ज्यादा बात नहीं करती, मगर वो बता देती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, ऐसे नहीं करती इनको हायर करो, इसको फायर करो, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप को वो बता देती हैं कि उनके क्या व्यूज हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप उनके व्यूज सीरियसली लेते हैं। अब ये बताया गया है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए थे तो उनको भी नहीं पता था कि उनकी विक्ट्री होगी हिलरी क्लिंटन के ऊपर 2016 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उन्होंने तो इनफैक्ट अपने स्कॉटलैंड में एक रिजॉर्ट में जाने के अरेंजमेंट रखे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो हिलरी क्लिंटन की सक्सेस देखें। तो इस तरह की बातें इस बुक में रिवील की गई हैं। और फिर जब पता चला कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनको क्विकली अपने ट्रंप टावर जो था उनका न्यूयॉर्क सिटी में, वहां से व्हाइट हाउस जाना पड़ा अपनी टर्म शुरू करने के लिए। मगर मेलानिया ट्रंप जो है वो 6 महीने बाद गई व्हाइट हाउस, क्योंकि वो उस टाइम कर रही थी अपना प्री नुपिशियल फाइनेंशियल एग्रीमेंट रीनेगोशिएट। तो उन्होंने वो मौका जो है उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा बैरन जो 10 साल का है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप के बाकी बच्चों के मुकाबले में सिमिलर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और इनहेरिटेंस मिले। तो उन्होंने नेगोशिएट किया अपना प्री नुपिशियल एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और 6 महीने बाद
उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्वाइन किया। अब 50 साल की इनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप और 38 ईयर की प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप के बीच में कुछ टेंशन्स बताई जाती हैं इस बुक में। तो ईस्ट विंग में होता है फर्स्ट लेडी का ऑफिस, और जब मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं पहुंची थी तब तक इवांका ट्रंप ने कोशिश की कि वो फर्स्ट लेडी के ऑफिस को ओवरटेक कर ले, और उन्होंने ये भी कोशिश की उसको फर्स्ट फैमिली ऑफिस रीनेम कर दिया जाए और पब्लिक ड्यूटीज वो निभाएं और व्हाइट हाउस के पर्क्स वो यूज करने लगी। मगर जब मेलानिया ट्रंप आई उनको ये पसंद नहीं आया, और वो और उनका बेटा बैरन जब फाइनली आए तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। ईस्ट विंग में उनका ऑफिस है और वेस्ट विंग में इवांका ट्रंप का ऑफिस है। दोनों के रोल जो हैं बहुत कम ओवरलैप करते हैं। इवांका अपने फादर की एडवाइजर है और मिलानिया ट्रंप के पास भी रोल्स हैं। मिलानिया ट्रंप कैंपेन करती हैं ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ, और इवांका ट्रंप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स लेती हैं और दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप की इमेज बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। अब दोनों ने कभी भी इकट्ठे जॉइंट इनिशिएटिव और इवेंट नहीं लिया, और उनके बीच में बताया जाता है बुक के मुताबिक कि इतनी टेंशन्स बुरी थी कि 2018 में वो अफ्रीका गई। उन दोनों ने सोलो ट्रिप अपना अफ्रीका रखा, मगर अलग अलग उनकी विजिट्स थी। मेलानिया अक्टूबर 2018 में गई, उनका फोकस था चिल्ड्रंस इशू एज पार्ट ऑफ आवर बी बेस्ट कैंपेन, और इवांका गई अप्रैल 2019 में टू हाईलाइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली अमंग वुमेन। तो उस टाइम में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनको मीडिएट करना पड़ा दोनों के बीच में। बताया जाता है कि उनके बीच में देखी जाती हैं दोनों जो फैमिली फंक्शंस हैं या सेरेमोनियल इवेंट्स पर, मगर ज्यादा ओवरलैप नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं बुक में पब्लिश हुई हैं और इसके पार्ट जो हैं कई पब्लिकेशंस में आए हैं उभर कर, मगर व्हाइट हाउस के एक स्पोक्समैन ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अनट्रू इन्फॉर्मेशन है विच इज कमिंग फ्रॉम अनोनिमस सोर्सेस। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। बॉलीवुड से एक बहुत दुख भरी खबर, राइजिंग स्टार सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। 34 इयर्स के थे। अब मुंबई में उनके अपार्टमेंट में की बॉडी पाई गई और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया। तो बहुत ही शॉक फैल गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और बाकी जगह। पटना से थे वो और पटना दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़े। वहाँ के लोग बहुत हक्के बक्के रह गए कि उन्होंने तो छोटे शहर के लोगों को सपने देखना सिखाया है। कभी वो इतने अच्छे प्लेयर थे, इतनी अच्छी उनकी नेचर थी, और उन्होंने एग्जाम्पल रखा बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह के बड़े सपने देखकर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल की जा सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे और वो छोड़कर वो एक्टिंग की तरफ गए। एक्टिंग में पहले उन्होंने शुरुआत की टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से, उसके बाद वो मूवीज में आने लग गए। 2013 में काइपोचे फिल्म में उनकी एंट्री हुई जिसको एक्लेम मिला बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पर। उनकी एक बहुत यादगार परफॉर्मेंस है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जहां पर वो लेजेंडरी क्रिकेटर MS धोनी की भूमिका निभाते हैं, और इसके लिए उनको अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न इन 2017। पिछले साल उनकी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी जो 100 करोड़ क्लब में भी पहुंच गई थी, और PK फिल्म केदारनाथ में उनकी भूमिकाएं जो हैं वो बहुत ही यादगार हैं। उनके फैंस बहुत शॉक हो गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और बहुत एक्सप्रेस किया है शॉक कि ऐसा कैसे हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको कहा है अ ब्राइट यंग एक्टर गॉन टू सून। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत, a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away, my thoughts are with his family and fans. Om Shanti. और सुशांत की आखिरी फिल्म है दिल बेचारा। ये फिल्म हॉटस्टार पर जल्दी ही रिलीज होगी।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जून 19 को उनकी रैली होगी टल्सा ओक्लाहोमा में, मगर अब उन्होंने वो चेंज कर दी है डेट 20 जून, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। वो दिन कमेमोरेट करता है एंड ऑफ स्लेवरी, और उस दिन टल्सा ओक्लाहोमा में एक मैसेकर हुआ था और बहुत बुरा मैसेकर था, जहां पर एक वाइट मॉब ने बर्न कर दिए थे होम, बिजनेस, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज इन द प्रीडोमिनेटली ब्लैक ग्रीनवुड डिस्ट्रिक्ट ऑफ टल्सा। उसको ब्लैक वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो उस मैसेकर में इस तरह की घटना हुई और लोगों ने कहा था कि ये दिन आपने क्यों चुना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम चेंजिंग द डेट टू 20 जून। और हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन करें कि 19,000 की सीटें हैं उस अरीना में, वो कह रहे हैं कि इस तरह की रैली खतरनाक हो सकती है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की वेबसाइट पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग पार्टिसिपेट करें उनको साइन करना पड़ेगा एक पेपर पर कि अगर उनको कोविड-19 की इन्फेक्शन होगी तो वो सू नहीं करेंगे कैंपेन को। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना 74th बर्थडे मनाया और सोशल मीडिया ने इस बार बहुत हटके उनका बर्थडे मनाया। कुछ लोगों ने तो उनको ग्रीट किया और कुछ लोगों ने फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अप्रिशिएट किया। तो लोगों ने कहा कि वो बहुत मिस कर रहे हैं बराक ओबामा को। ओबामा एप्रिसिएशन डे, ऑल बर्थडेज मैटर, फर्स्ट एनुअल ओबामा डे, इस तरह के मतलब एथलीट्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियंस, उन्होंने इस तरह के ट्वीट डाले और काफी लोगों ने ऑनर किया लाइव्स ऑफ ब्लैक पीपल हु हैव डाइड आफ्टर इंसिडेंट्स विद द पुलिस सच एज जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रियाना टेलर, ट्रेविन मार्टिन, टेमिर राइस एंड मेनी मोर। तो इस तरह का रिएक्शन जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 74th बर्थडे पर देखा गया सोशल मीडिया में। Let's have a look at the market performance today. Dow closes 150 points higher as Fed announcement sparks big comeback from massive losses. Stocks jumped today, recovering from earlier losses as the Federal Reserve announced further measures to support the market amid the coronavirus pandemic. The Fed said it would buy individual corporate bonds, marking a broader approach to corporate bond buying. The Dow Jones Industrial Average closed 157 points higher to close at 25,763. The S&P 500 gained 0.8% to end the day at 3,066, while the Nasdaq Composite advanced 1.4% to 9,726. The price of gold per ounce is $1,731. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 77 paisa. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.